हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपके लिए सॉल्व करूंगा बेस थ्योरम। ये क्लास 12th का टॉपिक है, प्रोबेबिलिटी। एंड प्लीज सी द प्रॉब्लम ऑन द बोर्ड। प्रॉब्लम बोर्ड पे है, लेट्स डू इट टुगेदर। इसमें हमें ध्यान रखना है कि हमें क्या गिवन है और हमें क्या फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसको। अ पर्सन हैज अंडरटेकन अ कंस्ट्रक्शन जॉब। The probabilities are 0.65 that there will be a strike. It means the probability, there are two conditions. Either there will be a strike or there will be no strike. So we can draw a tree diagram. This is S. S means there will be a strike. This is S dash, means there is no strike, and this is the origin of the tree diagram. There will be a strike, probability has 0.65. We will write here 0.65. और जब आप इसको 1 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, then we will get the probability that there is no strike. 1 minus 0.65, we will get 0.35. So हमने एक ब्रांच बना दी है. Now let's move on. Then the probabilities are 0.65 that there will be a strike and 0.80 that the construction job will be completed if there is no strike. No strike means this branch, no strike. So there are two conditions. Either the construction job will be completed or not completed. C and C dash. C means construction job will be completed and C dash means it will not be completed. So 0.80 is the probability of construction job will be completed and 1 minus 0.8, जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 में से तो हमें probability मिलेगी 0.20 that the construction job will not be completed. अब हम आगे बढ़ते हैं. 0.32 is the probability that construction job will be completed on time if there is a strike. Means this is the branch that there will be a strike. Now it is saying that if there is a strike, the construction job will be completed. The probability is 0.32. So here I will write 0.32 and 1 minus 0.32, 0.68 means the construction job will not be completed. तो ये हमारा ट्री डायग्राम बन गया. नाउ अब हमें देखना कि हमें फाइंड आउट क्या करना है. डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट द कंस्ट्रक्शन जॉब विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम. मीन्स कंस्ट्रक्शन जॉब कंप्लीट हो जाए ऑन टाइम. मीन्स वी हैव टू टेक दिस ब्रांच as well as we have to take this branch. So construction job is completed. So the probability will be this branch, means हमें ये numbers multiply करें 0.65 and 0.32. Plus 0.80 and 0.35. और हमारा आंसर आएगा, हमें कैलकुलेट करना है कैलकुलेटर से. हमें आंसर मिलेगा 0.464. सो ये फर्स्ट एग्जाम्पल था आपकी बुक का, एनसीईआरटी बुक का, कि किस तरह से इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे. सो दिस इज अ वेरी स्मॉल प्रॉब्लम, ये बहुत आसान प्रॉब्लम थी. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. अगली प्रॉब्लम हम करते हैं. स्टूडेंट्स, ये एग्जाम्पल नंबर 16 है. ये नेक्स्ट प्रॉब्लम है एनसीईआरटी की. अब मैं आपके लिए इसको सॉल्व करूंगा. तो सबसे पहले हम इसको रीड करेंगे. अ bag 1 contains 3 red and 4 black, while another bag 2 contains
5 रेड एंड 6 ब्लैक. इट मीन्स हमारे पास 2 बैग हैं, बैग 1 एंड बैग 2. सो लेट मी राइट. ये हमने ओरिजिन हमारा है, हमने 2 कंडीशन सेट कर ली. आइदर वी विल चूज बैग 1 और वी विल चूज बैग 2. बिकॉज वी हैव ओनली 2 बैग्स, so the probability would be 1 by 2 that we will select B1 or we will select B2. तो ये हमारी probabilities हो गई. Now let us focus on B1. B1 contains 3 red and 4 black. 3 red and 4 black. Find the probability one ball is drawn at random from one of the bag and it is found to be red. Means हमें probability ये देखनी है कि red को find करना है. तो बैग 1 में 3 red हैं and 4 black. तो red की probability होगी 3. This is red. Probability will be 3 upon 7 because total balls 7 है. और ब्लैक की प्रोबेबिलिटी होगी 4 अपॉन 7. ये हमारा है बैग 1 की कंडीशन. नेक्स्ट, सपोज वी चूज बैग 2. इन बैग 2 वी हैव 5 रेड एंड 6 ब्लैक. इट मीन्स टोटल 11. सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड विल बी 5 over 11. 5 over 11 and the probability of black will be 6 over 11. Now we have to find the probability that we are getting the red ball but from bag 2. हमें red ball मिल रही है but वो bag 2 से मिल रही है. तो इसको हम लिखेंगे we have to find the probability that it is red is given and we have to find that it is from bag 2. This is the way to write because red हमें मालूम है कि red मिल रही है तो red यहां पर आएगा इस जगह पर एंड प्रोबेबिलिटी इस बात की बतानी है कि वो बैग 2 से मिलेगा. सो सबसे पहले हम लिखेंगे रेड की प्रोबेबिलिटी कि रेड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी. सो रेड वी कैन सी दैट दिस इज रेड एंड दिस इज रेड. तो ये वाली ब्रांच ओरिजिन से हम रेड तक जाएंगे और यहां भी हम ओरिजिन से रेड तक जाएंगे. ये नंबर्स 1/2 एंड 3/7. 1/2 इंटू 3/7 प्लस 1/2 इंटू 5/11. 1/2 इंटू 5/11. तो ये प्रोबेबिलिटीज है दैट द बॉल इज रेड और हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है कि वो बैग 2 से आए. तो जो बैग 2 वाली जो चेन है वो ऊपर आएगी. बैग 2 वाले मींस ये नंबर्स, दीज नंबर्स 1/2 एंड 5/11. 1/2 इंटू 5/11. अब हमें सिंपली इसको कैलकुलेट करना है एंड वी विल गेट 35 over 68. स्टूडेंट्स, मैं आपको टाइप्ड सॉल्यूशन इसका दिखाता हूं. तो स्टूडेंट्स, ये क्लियर डायग्राम है, ट्री डायग्राम. इसको बोलते हैं ट्री डायग्राम एंड दिस इज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम. स्टूडेंट्स, आई होप कि ये दोनों प्रॉब्लम आपको समझ में आ गया होगा, ये सॉल्यूशंस. और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कुछ और प्रॉब्लम्स, क्लास 12 के कुछ और प्रॉब्लम्स को एक्सप्लेन करूंगा. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो if it is helpful to you. Thank you very much.